Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is going to be about a message which is meant to reach you right now. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. Hamisha ki tarah we are going to have 3 piles, and before that I'm gonna tell you that I'm using this deck. This is a new deck which came in the mail. एंड ये बहुत अच्छा डेक है, सुंदर डेक है. एंड आई नो मेनी ऑफ यू विल वांट नो द नेम ऑफ दिस टैरो डेक. सो दिस इज़ द डेक. मैंने सोचा मैं थोड़ा पहले बता दूँ क्योंकि फिर उसके बाद मैं अंदर रख देती हूँ डेक सारे, एंड देन आई सी योर कमेंट्स एंड देन and you will ask about this tarot deck. This is actually really beautiful. So we are going to use this deck. This is the deck. It's the golden age of Hollywood. Peek into the future through the golden age of Hollywood. It's the 50s vintage theme. So let's get started with the reading, or I should say let's get started with the pile selection. Pile number 1 is where do I give and receive. It says match. It says butterfly, milkweed. So this is pile 1. Pile number 2 is what am I listening for? Great horned or owl. It says here. Then we have pile 3. What is mending? Heal. Purple cornflower. So ये है पाइल 3 का कार्ड. सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. एंड अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट पास से, ताकि आप अपनी पाइल डिसाइड कर पाएं. अगेन वॉट एवर कार्ड, वॉट एवर पाइल यू गोना पिक, दैट इज गोना बी योर रीडिंग. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, आपने वो वाला कार्ड, वो वाली पाइल को पिक करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this card, this match card. It says where do I give and receive? Butterfly, milkweed. So let's get started with your reading. हम मेन टैरो से ही शुरू करने वाले हैं. Exact message just meant to reach pile number right now. Okay. We have 8 of swords. Pile 1, it seems that you are really confused about something in life. ये आपकी current energies या recent past को ये कार्ड represent कर रहा है. जो भी कार्ड first आता है tarot में, it represents your current energies or recent past. You have been really confused about something, या फिर you have been in a situation जहाँ पर आपको लगता है मैं एक तरह से लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती. जो सिचुएशन चल रही है मेरी या किसी और की, व्हाटएवर इट इज, आप ऐसा फील करते हो आई कांट मेक अ डिफरेंस हियर. ये हाथ में चीज़ मेरे नहीं है, तो मैं इसको नहीं बदल सकती या इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती. एक तरह से आप बंधा हुआ महसूस कर सकते हो किसी चीज़ को लेकर. थिंग्स आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, और देयर इज दिस सिवियर कंफ्यूजन अबाउट समथिंग. Then we have 9 of Pentacles. It shows that you're going to be back in power, pile 1. Don't worry, you're going to be back in power. Everything is going to be under control. Don't worry. You're back in power. And 9 of Pentacles also shows that you're going to be proud of the decisions you have taken, and especially you're going to be proud कि शुक्र है मैंने कुछ नहीं बोला, शुक्र है मैंने इंटरफेयर नहीं करा, शुक्र है मैंने कुछ कहा नहीं. You're going to be proud of this decision. So already you're confused. You should not make an opinion. You should not make a decision. क्योंकि फिर बाद में उसका पश्चाताप करना पड़ेगा. और जब आप चुप रहो इस सिचुएशन में, कोई ऐसा छलचल ना करो, वो बेस्ट रहेगा. साक्षी होकर देखने का समय है अभी खुद एक्शन लेने का टाइम नहीं है. So whatever the situation is, the guidance from the spirit via tarot is
don't move, wherever you are stay there and don't say anything. साक्षी भाव से देखो, क्योंकि आपके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है. So like that's the major guidance here for you and you're going to be proud of कि yes, शुक्र है मैंने शांति बरकरार रखी और मैंने कोई अपना ओपिनियन डिसीजन नहीं दिया. और परेशान मत हो. एक बात ज़रूर याद रखो, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है. हमारा जो है पास्ट भी बहुत अच्छा था, हमारा प्रेजेंट भी बहुत अच्छा और फ्यूचर और भी अच्छा होगा. क्यों? क्योंकि हम भगवान के बच्चे. सिंपल एज दैट. सो भगवान के बच्चों के साथ कुछ गलत हो सकता है? नहीं हो सकता ना. तो जिसके साथ सर्वशक्तिमान खड़ा है और हम उसके बच्चे तो मास्टर सर्वशक्तिमान हुए ना, तो कैसा डर? कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए. वही बात है ना कि अगर कोई एमएलए का बेटा या बेटी है, अगर कोई बहुत अच्छे अफसर का बेटा या बेटी है, वो ये कहेगा ना मैं उनका बेटा हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं उनकी बेटी हूँ, तुम्हें पता नहीं है, तुमने मुझे रोका कैसे. अगर पुलिस वाला रोक ले इतने हाई ऑफिसर के चाइल्ड को, तो ये कहेगा ना तुम्हें पता नहीं है मेरे पेरेंट कौन है, पता नहीं है. इतना नशा रहता है उनको. तो आपको भी नशा होना चाहिए, रूहानी नशा होना चाहिए पाइल 1, कि मैं किसका बच्चा हूँ. दाता के बच्चे देवी देवता. अभी देवी देवता बने तो नहीं है पर है तो भगवान के बच्चे ना. तो ये बात ज़रूर याद रखनी है और इस रूहानी नशे में रहना है. और हमें तो वरदान भी है त्रिकालदर्शी होने का. हम तीनों कालों को जानते हैं. हमें अपने पास्ट का भी पता है, हमें अपने प्रेजेंट का भी पता है और हमें अपने फ्यूचर का भी पता है. हमें पता है हमारा पास्ट भी अच्छा था, हमारा प्रेजेंट भी बहुत अच्छा है और हमारा फ्यूचर तो और भी बहुत अच्छा होगा. हमारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता. तो अपने जो स्वमान की सीट है उस पर सेट रहो and you are back in power. You're going to be back in power. You will feel like that again things are getting better and you will again be this 9 of Pentacles wala person. 9 of Pentacles person shows or this card shows you're back in power. आपको अपने हार्ड वर्क का स्वीट फ्रूट मिला. आपने जो एफर्ट करा था वो वेस्ट नहीं जा रहा है. जो आपने मेहनत करी है वो वेस्ट नहीं जा रही है और उसका कोई ना कोई रिजल्ट आपको मिल रहा है. एंड यू आर प्राउड ऑफ दैट. एंड योर parents, your people who love you, they are also proud of you. So, and you're also making a good friend. In future, you are making a good friend. You are making a lifelong friendship with someone. ये भी है. और मनी की अबंडेंस यहाँ पर नज़र आ रही है क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है. पेंटिकल्स मनी रिसोर्सेज का सूट है. सो अगेन मनी इज कमिंग टू यू. नेक्स्ट वी हैव the moon card. I mean, pile 1, you are someone who is we can say have psychic energies, have psychic powers. Your intuition is really strong और कहीं ना कहीं आपका conscious mind या आपका intuition ये कह भी रहा होगा, आपको गाइड भी कर होगा टेंशन स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है. तो अपनी कंट्रोलिंग पावर से अपने आप को कंट्रोल करो और जो सिचुएशन है वो ऑटोमेटिकली अंडर कंट्रोल आ जाएगी. आप भी उसके अंदर ऐसी अनकंट्रोल्ड सिचुएशन है, आप भी उसके अंदर ये ऐसा इमोशन या ऐसा एनर्जी डालो, टेंशन स्ट्रेस वाला एनर्जी डालो, तो कैसे चलेगा ना. ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए. सो द मून कार्ड शोज दैट आपको काम डाउन हो जाना चाहिए. एंड द मून कार्ड ऑल्सो शोज कि यू शुड नॉट टेक स्ट्रेस. आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और आपकी इंट्यूशन, आपकी कॉन्शियस माइंड आपको ये कह रही है कि साक्षी भाव होकर देखो, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते. कोई ऐसी सिचुएशन में आप हो जहाँ पर आप कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते और सिचुएशन अपने लिए और दूसरे के लिए शायद आप और ख़राब कर दो. उससे बेटर है साक्षी भाव होकर देखना. कई बार होता है ना कि हमें डेजा वू होता है और हमें लगता है कि ये तो हमने चीज़ पहले देखी हुई है, तभी हम कहते हैं ये डेजा वू है, ये सीन, ये सब हमने पहले देखा है तो डेजा वू. असल में ड्रामा रिपीट होता है. हम सारी सोल इस धरती पर आकर अपना पार्ट प्ले कर रही है. जैसे मैं अक्षता का पार्ट प्ले कर रही हूँ, अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये मेरा पार्ट है, ये मैं अच्छे से प्ले कर रही हूँ. आप अपना पार्ट अच्छे से प्ले करो और ये अनादि ड्रामा चला आता है और हम इस ड्रामा को क्रिएट करते हैं. तो जो पिछली बार हुआ था ड्रामा में, जैसा हुआ था वैसे ही अब हो जाएगा. सो कोई यहाँ पर टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की बात नहीं है. जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है. अगर कोई इंसान किसी का मर्डर भी कर दे ना, दैट इज द साइन टू हैपन.
ऐसा हुआ हो सकता है जिसने जिसका मर्डर करा उसने पहले उसी का मर्डर करा था, तो इस लाइफ टाइम में उसने कर दिया. कर्मा ऑलवेज कम्स बैक. हर आत्मा निर्दोष है, कोई भी दोषी नहीं है, पर साक्षी भाव होकर अपना बचाव करके चलना चाहिए. बाकी ऑफ कोर्स अगर किसी ने 7-8 मर्डर करे हैं उसको बस एक फांसी की सज़ा देना ये काफ़ी नहीं होता, पर यही जो है कानून है. पर डोंट वरी कि वो पर्सन जिसने 7 लोगों का मर्डर करा है उसको भी कई बार मरना पड़ेगा, या कई बार ऐसा जन्म लेना पड़ सकता है उस आत्मा को जहाँ पर वो अपाहिज हो. तो कर्मा ऑलवेज कम्स बैक. यू डोंट नीड टू like create this up and down वाली सिचुएशन फॉर योर सेल्फ. आपको अपने लिए टेंशन स्ट्रेस की सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए. आपको अंदर का अपना माहौल जो है, मन का माहौल शांत रखना चाहिए और साक्षी भाव से देखना चाहिए. क्योंकि मून कार्ड भी ना यहाँ काफ़ी हलचल शो कर रहा है. टैरो में मून कार्ड ना बहुत फ्लक्चुएशंस को शो कर रहा है, तो करता है. तो यहाँ पर भी लाइक योर माइंड इट डज शो. मून मन है, मन फ्लक्चुएशंस में काफ़ी है. और इवन द डॉग इज क्राइंग. ये भी एक ओमन कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि अगर जो डॉग्स है वो रोए तो ये अच्छा नहीं माना जाता. उनको इनफैक्ट भगा देते हैं. फिर बड़े बुजुर्ग तो भगा ही देते थे, अब तो पता नहीं क्या होता है. बट पहले अगर कोई डॉग आकर घर में रोने लग जाता तो उस डॉगी को भगा ही देते थे. क्योंकि इट इज़ सेड कि वो अच्छा नहीं है, कुछ बैड ओमन समथिंग सो जो डॉग्स हैं, ये जो एनिमल्स है, ये एनर्जीज कैच करते हैं, वाइब्रेशन कैच करते हैं. इनको पहली अर्थक्वेक एटसेट्रा इन चीज़ों का पता लग जाता है. सो दैट्स वाई दे डू दैट. और ऐसा सिचुएशन आपके भी कहीं ना कहीं गली मोहल्ले में इट कैन हैपन कि डॉग्स आर क्राइंग, और इफ़ यू हैव अ पेट देन दे आर नॉट बिहेविंग वेल. दे आर गिविंग यू दिस ओमन दैट समथिंग इज रॉन्ग, द एनर्जीज आर नॉट गुड. सो आपका यही काम है कि आप शुभ भावना शुभकामना सभी आत्माओं के लिए रखो, सभी के लिए रखो. नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए. भगवान नफरत करता है? कभी नहीं करता है. और हम उसके बच्चे, तो हम नफरत कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं. ये हमारी नेचर के खिलाफ है. Then we have 7 of Pentacles. 7 of Pentacles here is showing that again hard work is being paid off. It's being paid off. And if you notice, ये जो 9 of Pentacles वाली lady है, यही 7 of Pentacles में है, same. So her hard work really paid off. Due to her hard work, she is getting fame. You will get fame, pile 1. Don't you worry कि जो ऐसा मत सोचो जो मैंने हार्ड वर्क करा पास में वो सारा फेल हो गया. नहीं, हार्ड वर्क हमेशा पे ऑफ करता है. आज नहीं तो कल ज़रूर पे ऑफ करता है. तो 7 ऑफ पेनिकल शोज कि जो आपका काम है आप वो करते रहो, अच्छे से करते रहो, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा. डोंट चेंज योर पाथ. वट एवर पाथ यू आर फॉलोइंग, गो विद दैट पाथ ओनली. डोंट चेंज योर path. And 7 of Pentacles shows that you are gonna get the sweet fruit of your hard work. यहाँ पर victory नज़र आ रही है आपके लिए, यहाँ पर fame नज़र आ रहा है आपके लिए, and you're happy about it. You're enjoying that. क्योंकि hard work से है ना, जो मेहनत से चीज़ मिली होती है उसकी तो वैल्यू हम करते ही करते हैं. Next we have like something more. पाइल 1 के लिए क्या एग्जैक्ट मैसेज है जो उनको भी मिलना चाहिए. ओके, सो वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड हियर. वी हैव नंबर 42. सो again, things are transforming for you. You are transforming. Transformation is on cards for you, pile 1. Your situation is changing. यहाँ पर 8 of swords और ये जो मून वाला कार्ड है, ये दोनों कार्ड फ्लक्चुएशन और दोनों कार्ड स्ट्रेस, टेंशन, क्लैरिटी ना होना, सिचुएशंस अंडर ना कंट्रोल होना, मतलब लाइक यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर सिचुएशंस और थिंग्स विच यू आर सीइंग आर नॉट अंडर कंट्रोल. ऐसी सिचुएशन में आप हो, बट थिंग्स आर गोना चेंज, थिंग्स आर गोना ट्रांसफॉर्म. ये समय भी बीतने वाला है और बीत ही जाएगा. तो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन कार्ड. सो अगर आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, फ्लक्चुएशन मन में बहुत महसूस कर रहे हो, हलचल बहुत मन में महसूस कर रहे हो, एक के बाद एक कोई ना कोई थॉट क्रिएट हो रहा है, मन शांत नहीं बैठ रहा, इसमें चेंज आने वाला है. इसमें चेंज आने वाला है. ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर एंड सम ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो हैपनिंग इन यू. पाइल 1, आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके
एक सोच विचार जो आप करते हो उसका थोड़ा चेंज हो रहा है, लाइक मन चेंज हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है मन, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. इनफैक्ट यू कैन इवन चेंज योर लाइफ स्टाइल रूटीन, यू कैन चेंज समथिंग लाइक मे बी योर हेयर स्टाइल, लाइक यू कैन डू दैट एज वेल. कई बार हम अपने फिजिकल अपीयरेंस को थोड़ा बदलते हैं तो मन भी जो है बदलता है, मन भी अफेक्ट होता है. अगर हम अच्छे कपड़े पहनते तो हमें अच्छा महसूस होता है. अगर हम ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जो अच्छे नहीं हैं, पुराने ही वही पहन लेते हैं, कल जो पहना था वही आज पहन लिया, तो कल की एनर्जी भी आज में आ गई. कल अच्छा नहीं था वही वाली एनर्जी आप आज भी ले आए. सो ये भी अफेक्ट करता है हमारे मन को. सो अगेन इट कैन हैपन दैट यू चेंज योर फिजिकल अपीयरेंस और यू मेक अ चेंज इन योर रूटीन. कोई नया रूटीन आप शुरू करो. ये इस तरह के चेंजेस भी यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. कुछ नए रूल्स आप अप्लाई करो अपने आप पर. वही जैसे मैंने अभी बोला कि जो कल आपने ड्रेस पहनी थी, कल जो आपने कपड़े पहने थे वो आज आप नहीं पहन रहे हो, आप एक डिफरेंट ड्रेस पहन रहे हो. ये भी हमारे मन को अच्छा करता है, पॉजिटिव करता है. तो ऐसे चेंजेस आप लेकर आते हो नजर आ रहे हो. देन वी हैव इनर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. सो यस, आई मीन दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स डज शो इनर कन्फ्लिक्ट, डज शो कि मैं ये करूँ या मैं वो करूँ, मेरा मन ये कह रहा है, दिमाग मेरा ये कह रहा है. सो लाइक देयर इज दिस इनर कन्फ्लिक्ट विच इज गोइंग ऑन, बट इट इज गोना कम टू रेजोल्यूशन. यानी कोई ना कोई आप नतीजे पर, कोई ना कोई आप डिसीजन पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हो, अभी से 9 days बाद या फिर अभी से 9 hours बाद. पर चेंज जरूर है 9 days के बाद ही या फिर 9 hours के बाद आप रेजोल्यूशन पर पहुंच रहे हो. दैट कैन बी सीन एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम फार 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 अवे. यू विल बी एबल टू लुक एट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम फार फार अवे एंड विल एबल टू ग्रैब देम. एंड ऑल्सो जो आपकी पुरानी आदतें हैं आप उनसे ज्यादा अटैच्ड नहीं हो. जो आपकी पुरानी हैबिट्स है आप उससे अटैच इतना नहीं नजर आ रहे. स्नेक जो है यहाँ पर ये शो कर रहा है, जैसे स्नेक, जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ता है, अपनी स्किन छोड़ता है, तो वो सांप को कोई दर्द थोड़ी ना होता है, ना उससे अपनी पुरानी स्किन से वो अटैच्ड होता है. तो यही सिचुएशन आपकी भी नजर आ रही है पाइल नंबर 1, दैट यू आर नॉट अटैच्ड टू योर योर पास्ट हैबिट्स एंड योर मतलब पास्ट रूटीन्स, या जो चीज़ें आपको डाउन करती थी, जो चीज़ें आपको अच्छा महसूस नहीं करने देती थी, डाउनफॉल में मेंटली लेकर आती थी, उन चीज़ों से यू आर नॉट अटैच्ड. कई बार होता है ना, हमें पता है हम गलत कर रहे हैं पर हमें इतनी ताकत नहीं कि हम उस गलत को ठीक में बदलें. वेरएज़ यहाँ पर वो ताकत नजर आ रही है. जो कमी कमजोरी आपको अपने में लगती है, आप उस कमी कमजोरी पर वर्क करने को तैयार हो. आप कोई नई अच्छी चीज अपनी लाइफ में ऐड करने को तैयार हो, जिससे पुरानी बुरी चीज ऑटोमेटिकली छूटती हुई नजर आ रही है. चेंज शब्द मुश्किल है पर कोई नया चीज ऐड करना वो इजी है. तो ये गाइडेंस भी कोई नई चीज, नई हैबिट अपने अंदर ऐड करो, पुरानी अपने आप छूटेगी. So this is what we are getting for you. Pile number 1. Last but not the least, we have the card Meadow. It says vulnerability. This is your situation right now. Pile 1, you're actually really vulnerable. कि जैसे ये रीडिंग भी है, it is gonna affect you. ये रीडिंग आपको एक पॉजिटिव वे से अफेक्ट करेगी. पर अगर कोई इंसान आपको कोई नेगेटिव चीज बोल रहा है, आप उससे भी अफेक्ट हो गए इस समय पर पाइल 1. सो अपना जो संग है बड़े ध्यान से चुनो, अपनी जो कंपनी है वो बड़े ध्यान से चुनो. इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब पर या गूगल पर कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, वो आपको साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट करने वाली है. तो चूज योर कंटेंट वाइजली बिकॉज इट्स गोना अफेक्ट योर मेंटल पीस. इट विल. समय ही कुछ ऐसा है जहां पर हल्की सी नेगेटिव चीज भी आपको क्या, कई लोगों को इफेक्ट करेगी. क्योंकि पाइल 1 आप सिर्फ एक इंसान थोड़ी ना जो ये रीडिंग देख रहे हो, ऐसे कितने हैं पाइल 1 वाले, वो इफेक्ट होंगे. तो इट्स लाइक अ वनरेबल टाइम फॉर ऑल ऑफ यू पाइल 1 एंड ट्राई टू चूज योर कंटेंट वाइजली. नेगेटिव जितना देखोगे उतना नेगेटिव मन में चलेगा, उतना आप इन्वायरमेंट को पोल्यूट करोगे. वैसे इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है नेगेटिविटी से, आप और उसमें ऐड ऑन करोगे.
So be careful about it. What you choose to see, what you choose to listen, be careful. Alright, so this is the exact message for you, pile number 1 for right now. And again, astrologically देखे, so नागरूल नक्षत्र like रोहिणी, मृगशिरा, अश्लेषा, ये यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. इवन अश्विनी. तो साइन ऑफ एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, ये 4 साइन मेजर हैं. एंड इवन आई से कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, ये साइंस भी. सो एरीज में वी हैव अश्विनी, भरणी, कृतिका. देन टॉरस में वी हैव कृतिका बीइंग स्पेल्ड इन टॉरस, एंड देन रोहिणी, मृगशिरा. फिर मृगशिरा स्पेल करता है जेमिनाई साइन में. देन आर्द्रा, पुनर्वासु. फिर पुनर्वासु स्पेल करता है कैंसर में. देन पुष्या, अश्लेषा. और कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. फिर धनिष्ठा स्पेल करता है एक्वेरियस में. फिर शतभिषाख और पूर्वा, भद्रपदा नक्षत्र. सो ये यहाँ पर नक्षत्र प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं. एंड या आई ऑल्सो फील मेनी ऑफ यू कैन बाय कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज. स्पेशली हम नागारूल नक्षत्र की बात करें, नागाज हैव हिप्नोटिक आईज, snakes have hypnotic eyes. तो नागारूल नक्षत्र people have this interest of changing their looks, not just their hairstyle, not just their clothes, but in fact their eye color. Yeah, they will try to enhance their eyes with the eye makeup, or they naturally can have very beautiful, very good eyes. Good eyes का मतलब ये नहीं कि आंखें तेज होगी, चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं. गुड आइज का मतलब है, ब्यूटीफुल आइज का मतलब है कि सुंदर आंखें हैं. बाकी वीक आइज हो सकती है, चश्मा आपको लगाना पड़ सकता है. सुंदर आंखें होना ये तो है ही, बट चश्मा भी लाइक मेनी ऑफ यू में हैव टू यूज. तो दैट कैन बी सीन हियर. मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू गेट योर आई प्रिस्क्रिप्शन, मतलब आंखों का नंबर चेंज हो रहा है. दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई सी. मेनी ऑफ यू कैन डील विद दी सडन हेडेक्स right now, or you're already dealing with this thing. तो ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं. So yeah, that was it. This was the reading. But ये जो आंखों की प्रॉब्लम है या सिर का दर्द है, धीरे धीरे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है. अभी से 9 days बाद या 9 hours बाद आपको रिलीफ यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है. Again, choose your content wisely. Whatever you see, whatever you listen, whatever you read, choose that content wisely. It is gonna affect you. Really, it will hit you like a bus. So be careful. And yeah, so आपका sun moon rising आत्मा कारक का planet holding the highest degree in your chart, ascendant lord जो in signs, in नक्षत्रास में placed होगा in the main birth horoscope, या फिर in the नवांश, या फिर in the D12 Duradamsha chart. So this is what we are getting. All right, pile 1. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in this bracelet set is also available on the website. You can check them out. And yeah, that was it. I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose what this owl card. It says, what am I listening for? Great horned owl says here. Let's get started with your reading. So main tarot से हम शुरू करेंगे. What is the exact message pile number 2 is supposed to hear right now, is meant to hear right now? क्या वो मैसेज है? Okay, we have quite a few cards here. So we have the Page of Wands. All right, we have the Judgment card. Okay,
Then we have the devil. Then we have the death card. Okay. Temperance. Hanged Man. And the Magician. All right. Okay, a lot of major arcana is here. I want to say that things are going to happen in a series in your life, pile number 2, in the very near future. I see कि जैसे जो Page of Wands है, you have a fragile ego for right now, pile 2. Really a fragile ego. अगर किसी ने तारीफ करी तो आप चढ़ जाओगे, और अगर किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा कहा तो बिल्कुल ही ज़मीन पर आ जाओगे. सो वही है ना, निंदा स्तुति मान अपमान. भगवान कहते हैं निंदा स्तुति मान अपमान ये अफेक्ट नहीं करने चाहिए. अगर कोई तारीफ करे तब भी खुश नहीं होना है, अच्छी चीज़ हो रही है तब भी खुश नहीं होना है, और अगर किसी ने कुछ बुरा कहा तो उदास भी नहीं होना है. मतलब ये कहा जाता है. अब हम इस चीज़ को कितना रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं वो हम सभी को पता है. वो हम सभी को पता है ना ये बात, तो कि कितना हम अप्लाई करते हैं. तो गाइडेंस यहाँ पर ये है कि ना अभी खुश होने का समय, ना अभी उदास होने का समय, न्यूट्रल रहने का भी समय है. आपने इस चीज़ पर फोकस करना है कि आप किसी की तारीफ से खुश नहीं हो रहे, कोई अच्छी चीज़ से खुश नहीं हो रहे, और ना किसी बुरी चीज़ से उदास हो रहे, ना किसी की क्रिटिसिज्म से आप उदास हो रहे. आपने एक न्यूट्रल चीज़ अपनानी है अभी अपनी लाइफ में. ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है. जजमेंट का कार्ड यहाँ पर है. इट सेज विनर है, इट सेज विनर. सो आई डू सी कि हाँ किसी चीज़ में आप विन करते हुए नज़र आ रहे हो. यहाँ पर भी आपको फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है. स्पेशली जिन चीज़ों को लेकर आप बड़ा पैशनेट हो, उन चीज़ों के अंदर आपको यहाँ सक्सेस मिल रही है. उन चीज़ों के अंदर यू आर द विनर, यू आर गेटिंग फेम, यू आर गेटिंग सम पोजिशन. ये यहाँ शो हो रहा है जीत पा रहे हो आप, जीत मिल रही है आपको. साथ ही साथ फिर वी हैव द डेविल एंड द डेथ कार्ड, जो कि शो करता है कि योर ओन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ इज गोना हाइटन. मतलब अब आपको कुछ मिल गया, आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया, इसके बाद जो है आप फ्यूचर को लेकर थोड़ा ऐसा हो जाओगे कि अब अच्छा ही अच्छा होना चाहिए, अब मुझे परफेक्ट ही परफेक्ट चाहिए. जब हम एक बार परफेक्शन को हासिल कर लेते हैं तो हम चाहते हैं कि हम कल परसों आगे चल के ऐसा ही करें. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा योगा बहुत अच्छा होगा, आज मेरा प्राणायाम बहुत अच्छा होगा. मैं यही चाहूँगी ना कि कल भी बहुत अच्छा हो, आगे अच्छा ही अच्छा हो, मैं यही चाहूँगी. पर मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. डेविल शो समथिंग विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल. डेथ शो समथिंग विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल. क्या आप किसी की डेथ कंट्रोल कर सकते हो? नो, वी कांट. भगवान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा के अपने कर्म उसको खींच के लेके जाते हैं. तो सुख और दुख देने वाला भगवान नहीं है. भगवान तो सुख करता और दुख हरता है. तो भगवान को वो मत दो कि ऐसा करा भगवान ने. नहीं, देखो भगवान से हम क्या सीखते हैं. वो हमारा पिता है, पहले तो माता पिता दोनों है भगवान. गॉड इज आवर मदर एंड आवर फादर, राइट. तो भगवान को भी कितने ही लोग जो है ऐसे बहुत तारीफ भी करेंगे, बहुत अच्छा भी कहेंगे भगवान को, और कुछ उनकी लाइफ में अगर अच्छा नहीं चला तो भगवान को ही दोषी ठहराएंगे, भगवान को ही बुरा भला बोलेंगे. ऐसे भी लोग हैं. तो भगवान देखो गाली भी खाता है पर साथ में तारीफ भी मिलती है. तो हम भगवान के बच्चे, तो हमें भी इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए कि निंदा स्तुति मान अपमान, या कोई अच्छी चीज़ हो रही है, न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल रहना है, झाड़ पे नहीं चढ़ जाना है. ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपके लिए आ रहा है. तो अगर आज आपके साथ अच्छा हुआ, अच्छी बात है, आप ज़रूर एक्सपेक्ट करो कि कल फ्यूचर में भी अच्छा हो. पर उस एक्सपेक्टेशन पर ही अपनी लाइफ मत चलाने लगो. मतलब बी रेडी फॉर थिंग्स विच मे नॉट बी अंडर योर कंट्रोल. ऑलराइट, सो दैट्स द गाइडेंस.
एंड यहाँ पर कोई चीज़ एंड भी होती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली हैंडमैन के साथ ये डेथ कार्ड आया रखा गया है, हैंडमैन के साथ ये डेथ कार्ड रखा गया है, जो कि शो करे हैंडमैन रिप्रेजेंट करता है जो सिचुएशंस अटकी हुई थी, जो काम आपके अटके हुए थे, चलते थे, फॉरवर्ड मूव करते थे और फिर रुक जाते थे। तो उन कामों का एक तरह से लाइक जो आगे चलना फिर रुक जाना, फिर आगे चलना फिर रुक जाना, ये ऐसा रेपिटेशन एंड हो रहा है। अगर आप एक लूप में चल रहे थे कि मैं इस एग्जाम को पास करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मैं ये पोजीशन चाहती हूँ अपनी लाइफ में, मेरे को पिछली बार भी हार मिली थी, आई जस्ट इस बार मुझे इसमें जीत चाहिए, मैं सेम पैटर्न रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, तो हाँ उस पैटर्न का यहाँ पर एंड होता हुआ नजर आ रहा है। जो चीजें अटकी हुई थी वो फॉरवर्ड मूव करने लगेगी, वो रेपिटेशन नहीं होगा उस चीज का। नाउ यू आर गोना मूव फॉरवर्ड, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। ऑल्सो द डेथ कार्ड शोज कि जो आपने आइडियाज आपने सोचा ये कभी फुलफिल होने नहीं वाले हैं, दिस कैन नॉट हैपन, वो आइडियाज जो है अब प्रैक्टिकल रियलिटी में आप कन्वर्ट करते हुए नजर आ रहे हो। सी वी हैव द डेथ एंड वी हैव द कॉफिन एंड वी हैव सम लाइक ड्रैक्युला मे बी लाइक कमिंग आउट ऑफ दिस कॉफिन, the person who was dead is coming back to life. It's like Bharani nakshatra, it's like Venus की संजीवनी पावर है, Venus is संजीवनी। लाइक इफ देयर कैन बी हाई चांसेस पायल नंबर 2 की आपके चार्ट में जुपिटर वीनस का कंजंक्शन है। जुपिटर वीनस इज जीवा संजीवनी योगा, जुपिटर इज जीवा, संजीवनी इज वीनस। इट शोज कि ये जिसके चार्ट में ऐसा कंजंक्शन होता है जुपिटर वीनस का, आपके चार्ट में हो सकता है पायल नंबर 2 कंजंक्शन हो, या फिर वीनस इज 5 और 9 प्लेसेस अवे फ्रॉम जुपिटर। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर इज इन द फर्स्ट हाउस, तो वीनस इज इन द 5th हाउस, या फिर वीनस इज इन द 9th हाउस, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। ट्राइन फ्रॉम जुपिटर जो है वीनस प्लेस्ड है इन योर चार्ट, या फिर वीनस इज कंजंक्ट विद जुपिटर। तो इस इफेक्ट यही है इस प्लेसमेंट का कि यू कैन ब्रिंग द डेड इन टू लाइफ, यू हैव दिस एबिलिटी विद इन यू पाइल 2। जैसे कुछ रिलीजन्स में ऐसा है ना कि वो दफना देते हैं, अगर कोई आत्मा शरीर छोड़ के निकली है तो वो शरीर को जलाते नहीं, वो शरीर को दफना देते हैं, और वो कहते हैं उनके रिलीजन में ये कहा जाता है कि भगवान आएगा और मुर्दों को जगाएगा। वो वैसा तो हो नहीं सकता है कि भगवान मुर्दों को जगाए, वो जो डेड बॉडी अंदर दफन करिए वो तो उसकी तो मिट्टी बन जानी है विद टाइम, उसकी तो सच में ही मिट्टी बन जानी है। तो भगवान तो परम पिता परमात्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है, क्योंकि शेर का बच्चा शेर, इंसान का बच्चा इंसान, तो आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, वो किसका बच्चा, वो परमात्मा का बच्चा, तो वो भी भगवान भी पॉइंट ऑफ लाइट हुआ, निराकारी हुआ। तो अब देखो फिर भगवान तो आत्मा को जगाता है, तो इसका रियल मीनिंग यही, इवन विद योर रीडिंग पाइल 2 आई एम सेइंग दिस होल थिंग इज बिकॉज लाइक यू कैन ब्रिंग लाइफ, यू कैन ब्रिंग डेड इन टू लाइफ, आपके अंदर ये पावर है। जो डिप्रेशन में है, जो सुसाइडल है, जो मरने की हालत में है, जीते जी मरने की हालत में है, जीते जी मर से रहे हैं, मतलब डिप्रेशन में है, एक तरह से ज़ॉम्बी है, उनको आप जो हो होप देने वाले पर्सन हो, उनको आप फिर से जो हो उनके लाइफ में उमंग उत्साह क्रिएट करने वाले पर्सन हो, ऐसे काम आपको करने पड़ेंगे। And that too in the very near future you are doing that. You are motivating people. You are bringing hope in their life. आप उनके अंदर उमंग उत्साह भर रहे हो, ये यहाँ पर शो हो रहा है। आपके अंदर ये पावर है, एबिलिटी है दूसरों को हील करने की। यू कैन लिटरली बी अ हीलर विद जुपिटर वीनस कंजंक्शन और जुपिटर वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर। यू कैन बी अ हीलर, यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी एन आयुर्वेदिक हीलर, यू कैन बी होम्योपैथिक हीलर, या फिर यू कैन बी अ रेकी हीलर, और या फिर आपकी बात कुछ ऐसी, आप कोई ऐसी बात कह दो दूसरे को जो दूसरे को क्लिक कर जाए और उसकी जिंदगी में चेंज आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, उसकी जिंदगी और अच्छी हो जाए। लाइक यू कैन से सच थिंग्स, यू मे नॉट हैव द एडवाइस टू गिव बट यू विल से समथिंग जो दूसरे को क्लिक करेगा और उसकी लाइफ में चेंज आएगा, अच्छा गुड चेंज आएगा।
You can even have Venus in the ascendant, यानी फर्स्ट हाउस में Venus plays in the main birth horoscope, या फिर in the D12 chart, या फिर Venus 7th हाउस में plays in the main birth horoscope या in the D12 chart. ये प्लेसमेंट भी हो सकती है. एंड इवन आपका सन मून राइजिंग आत्मा कार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट ascendant लॉर्ड कैन बी प्लेस्ड इन Capricorn में स्पेसिफिकली श्रावण नक्षत्र में, क्योंकि श्रावण people are also the people who will say something even if they don't have the right advice to give. They will say something जो दूसरे को क्लिक करेगा और दूसरे का उससे कुछ ना कुछ भला हो जाता है. Like that happens. कुछ ना कुछ वो उसको क्लिक करेगा और वो पर्सन की वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और वो कोई और जो है कोई और एस्पेक्ट जो होगा लाइफ का उसको लेकर आपसे अगेन एडवाइस लेने के लिए आएगा. So I see you like that. I see you in this kind of situation in the future. और ये planetary placement भी हो सकती है आपके चार्ट में. Even though if you let's say not have this planetary placement, but this is something which is going to happen in the near future. और ये आपकी energies हैं. Magician card है ना. Magician card ये show करता है that you have the power. You have each and every resource to make the impossible possible. ये possible थोड़ी ना होता है कि dead को life में ले आओ. Possible नहीं होता. पर कई बार एक इंसान जीते जी मरने की हालत में होता है, आप उसको ज़रूर लाइफ दे सकते हो. यू हैव दैट टैलेंट, यू हैव दैट थिंग इन योर हैंड, यू हैव इट. जो लोग जिनका वीनस असेंडेंट या 7th हाउस में होता है या जिनके पास जुपिटर वीनस कंजंक्शन होता है एंड लेट्स से वो एक डॉक्टर या एक सर्जन है, दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स एंड बेस्ट सर्जन्स आउट देयर. So next time if you go to a doctor, ask them about their date of birth, time of birth, place of birth. Maybe they have this Venus-Jupiter conjunction, Jiva Sanjeevani Yoga, or Venus is placed in the ascendant or the 7th house. Then you will know कि ये मेरा इलाज कर सकता है और ज़रूर करेगा. You will know that. तो ऐसे आप डेली लाइफ में भी वैसे एस्ट्रोलॉजी को यूज़ कर सकते हो. And go to a doctor on an Ashwini day. Start your medicine in an Ashwini day when moon is transiting Ashwini, क्योंकि Ashwini is again about healers. तो magician again यही show कर रहा है that you have the power, you have the resources to create something miraculous. जो चीज़ें आपने सोचा मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, उसका एंड हो चुका मेरी लाइफ में. मैं करना चाहती थी पर मैं नहीं कर पाई, तो वो चीज़ों को आप अब करते हुए नजर आ रहे हो. लाइक द टेम्परेंस शो एक नई सुबह, एक नई शुरुआत. कई बार होता है ना कि वी आर इन आवर 40s एंड वी ऑलवेज हैड दिस ड्रीम इन आवर 20s दैट वी आर गोना डू दिस, बट नहीं हो पाया, है ना. कई चीज़ें सामने आ गई, नहीं हो पाया, पर अब वो चीज़ आप कर सकते हो. लाइक आई जस्ट गेव एन एग्जाम्पल कि इफ़ यू आर इन 40s एंड यू फेल्ट कि मैं वो चीज़ नहीं कर पाई. सो इट्स नॉट रियली अबाउट द एज, बट इट जस्ट शो कि कोई पास्ट की चीज़ है जो आप करना चाहते थे, आपने पास्ट में सोचा था आई विल डू इट, बट देन कुछ ऐसा हुआ कि आप नहीं कर पाए. तो अब आपको लाइफ मौका दे रही है उस चीज़ को करने का. द टेम्परेंस इज शोइंग द न्यू डॉन एंड इवन विद द डेथ कार्ड, इवन विद द मैजिशियन, इट शोज की वो जो पुरानी चीज़ थी जो आप दफना चुके थे कि अब मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, वो चीज़ अब आप कर पा रहे हो. और ये चीज़ें होती हुई वी कैन से कि 10 days बाद ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है. ज़्यादा समय नहीं, बस 10 days फ्रॉम नाउ ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है. So yeah, and that's why I feel with the page of wands, I feel कि यही बात है कि निंदा स्तुति मान अपमान इसका इफेक्ट आप पर नहीं आना चाहिए. क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि अब तो समय आगे बढ़ गया, अब तो इतनी एज होगी, अब ये करना ये शोभा थोड़ी ना देता है, अब नहीं करना चाहिए. आपको उससे खुशी मिल रही है, दूसरे का क्या. तो दूसरे की ओपिनियन अगर ऐसी हो जो आपकी उमंग उत्साह को कम कर दे, उसकी वो ओपिनियन एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो. पर जो आपने ठान लिया उसको कर लो. जो अगर आपको मौका मिलता है ना इस पास की चीज़ को अभी जो है जीने का, अभी इस पास की चीज़ को करने का, अगर ये लाइफ में मौका मिलता है उस मौके को छोड़ो मत. So that's the real guidance coming for you, pile number 1. Sorry, pile number 2. All right. And last but not the least, let me pull few more cards for you, pile number 2. And I feel कि इस चीज़ से जो पास्ट की वो चीज़ थी उसमें भी आपको कोई
जो है अवार्ड रिवॉर्ड या फेम मिल सकता है, दैट अगेन कैन हैपन। ये एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो बार बार अटक रही थी पर अब वो अटकेगी नहीं, आप बार बार कोशिश कर रहे थे उस चीज़ को करने की बट फिर कोई हर्डल आ जाता था, फिर रुकावट आ जाती थी, बट अब उस चीज़ में रुकावट नहीं आएगी। एंड ऑल्सो विद द डेविल कार्ड, डेविल शोज योर ओन नेगेटिविटी, इट शोज योर ओन नेगेटिविटी पाइल 2 एज वेल, इट्स लाइक दैट। तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या बोलेंगे, मुझे करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं, don't be negative about this thing, don't be negative about your future। ये भी strong guidance है। आप अपने खुद के कहीं ना कहीं सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हो और रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हो अपने आप को, ये बात ठीक नहीं है। Then we have tree, it says grounding, we talked about this in the first card only, page of wands में हमने बात कर ली थी, right? ये page of wands है ना, yes, page of wands में हमने बात कर ली थी। pile 1, निंदा स्तुति मान अपमान नहीं इफेक्ट आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बी ग्राउंडेड, चने के झाड़ पे मत चढ़ जाओ, यही कहते हैं ना, चने का झाड़ या झाड़ पे मत चढ़ जाओ अगर कोई तारीफ करे। बी ग्राउंडेड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस। Then we have synergy, everything is going to happen in a flow। ये बात भी हमने शुरू में ही कर ली थी पाइल 2 की हर चीज़ एक फ्लो में होगी, एक सीरीज में होगी, एक सीरियल वाइज होगी। सो that's there। And the green man also shows कि be near nature, be surrounded by nature, है ना। कई बार लोगों का साथ नहीं चाहिए होता, कई बार अपना साथ और नेचर का साथ काफ़ी है। तो यही आपके लिए भी गाइडेंस है कि स्पेंड टाइम इन नेचर, आप अपनी खुद की नेचर से फिर मिल पाओगे, अपने आप को ज़्यादा बेटर जान पाओगे। सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू पाइल नंबर 2। सो दिस इज व्हाट इज द लाइक दिस इज द exact message which you are meant to hear right now, which you're supposed this is the message which is supposed to reach you right now। All right, so yeah, that was it, this was the reading for you pile number 2। astrologically देखे तो I'll say Aries, Taurus and Aquarius and Capricorn as well, Leo, Pisces, ये signs important है आपके चार्ट में। आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, ascendant लॉर्ड कैन बी प्लेस्ड इन दीज साइंस एंड दीज। एंड अगेन एरीज में भी अश्विनी, भरणी, कृतिका फिर स्पिल होता है टॉरस में, देन रोहिणी, मृगशिरा, फिर लियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मागा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। एंड बिकॉज लाइक इवन आई से वर्गो, क्योंकि वर्गो डिटेल ओरिएंटेशन के बारे में, क्रिटिसिज्म के बारे में भी है इनफैक्ट, और वर्गो और लियो दोनों फेम के बारे में भी है, क्योंकि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पीपल आर द पीपल हु वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, हु वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, हु वांट टू बी ऑन अ स्टेज और अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन शो देयर स्किल, वेयर दे कैन गेट फेम, वेयर दे कैन बी एडमायर्ड बाय अदर पीपल। सो वर्गो में भी है उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्र, और आई ऑल्सो से लीब्रा, ये भी इम्पोर्टेंट साइन हो जाता है। लीब्रा में वी हैव द नक्षत्र ऑफ चित्रा, स्वाति, विशाखा, फिर कैप्रिकॉर्न में उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, और फिर शतभिषाख और पूर्वा, भद्रपदा। शतभिषाख ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शतभिषा एक राहु रूल्ड नक्षत्र है। इवन लीब्रा में स्वाति इज अ राहु रूल्ड नक्षत्र। तो Rahu rule nakshatras are basically outcasted nakshatras. These people do something which is really unorthodox, which is really unconventional, and they are the black sheep of the family. ये चीज़ें होती है अगर एक पर्सन का मून या आत्मा कारका या सन इन नक्षत्ras में placed हो. So this can be seen. And many of you will love singing music and will have some music instrument at your home, at your place. ये भी है क्योंकि श्रावण और धनिष्ठा they are music related nakshatras. Especially Dhanishta is about being a musician. Saravan is also about music and specifically singing. And it's also about like Saravan and Dhanishta are also about public speaking. तो ये skill sets भी आपके अंदर होंगे. Like your performance can be really dynamic pile number 2. Alright, so ये यहाँ पर
इंडिकेशन है एस्ट्रोलॉजिकल। अगेन ये साइंस, ये नक्षत्र, इसमें आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस होगा इन द मेन बर्थ होरोस्कोप या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट या फिर इन द D12 चार्ट। एंड ऑल्सो इन Pisces becomes important. Pisces में we have Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada and Revati. Alright, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in this bracelet set, you can get this bracelet set over the website itself. Again, the link to the website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the Heal card here. Let's get started with your reading. What is mending? Purple cornflower. So yeah, let's get started with the main tarot here. एग्जैक्ट मैसेज क्या आ रहा है स्पिरिट से वाया टैरो पाइल 3 के लिए, विच दे आर सपोज टू हियर राइट नाउ। Okay, so we have these cards. All right, number one, I want to say कि we have the heal card here. I feel कि there is maybe some mental health issue or maybe some physical health issue which has been there going on for maybe years or maybe months, and that is gonna heal now. ये यहाँ पर इंडिकेशन, और हील इन द सेंस के this disease or this problem which you dealt with in the past and you're dealing with in the present, दशा बदल रही है, planetary time cycle change हो रहा है। पाइल नंबर 3, this happens, दशा बदलती, जो आप जिन प्रॉब्लम से डील करते हो ना, वो प्रॉब्लम somehow चली जाती है और नई चीज, नई प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि सी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होंगे, इसी को ही लाइफ कहते हैं। But that can be definitely seen even with the Ace of Swords here, and what I have been feeling with your reading, जब से जो है अभी like I said कि hello pile 3, this is your reading, you chose the heal card, जब मैं ये वाला sentence भी बोल रही थी, then also I was thinking about that there is something जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, and that something is some health issue, मेंटल हेल्थ इशू या फिजिकल हेल्थ इशू, और वो चल ही रहा है, पता नहीं कब ठीक होगा। दवाइयाँ तो चल रही है या आप अपने खुद के सेल्फ एफर्ट्स तो करते हो, पर कब ठीक होगा, लाइक दैट थिंग इज देयर, दिस इज द सिचुएशन। बट विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी कि ये हेल्थ इशू कट होने वाला है, चेंज यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, नई शुरुआत यहाँ होती हुई नजर आ रही है। दैट्स व्हाई आई सेड कि दशा, द चेंज इन दशा इज हैपनिंग, change in planetary time cycle is happening. Maybe you were running the Ketu Antardasha, Ketu Mahadasha, or maybe you were running, or maybe you are right now running Ketu Antardasha, Ketu Mahadasha, Moon Antardasha, Moon Mahadasha, या अपनी 6th लॉर्ड की दशा आप रन कर रहे हो, बट अब वो दशा खत्म होने वाली है, एंड होने वाली है, तो दैट इज देयर। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ कट को शो कर रहा है और एंडिंग को शो कर रहा है और न्यू बिगिनिंग्स को शो कर रहा है। जो भी सिचुएशंस या जो भी चीजें आपको कंफ्यूज करती थी, नाउ यू आर गोना गेट क्लैरिटी अबाउट दोज थिंग्स, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स। King of Cups here shows कि you have this emotional immunity, or emotionally intelligent people can't fool you with their sweet talks, with their sugar coated words. People can't do that with you anymore. आपके पास ये ability है कि आप एक नज़र में जान सकते हो कि ये इंसान ठीक है कि नहीं, ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक नज़र में आप जान पाओगे। ये इस तरह की पावर आप अपने अंदर डेवलप कर चुके हो, और इस पावर को यूज़ करने का आपको मौका मिलने वाला है।
because you're going to a new place where people are gonna judge you and also you are gonna judge other people. And I also feel कि आप कोई चीज़ अचीव भी कर रहे हो, like you are achieving something, due to that people want to be associated with you. कोई आप ऐसी चीज़ अचीव कर चुके या करने वाले हो जिससे लोग आपकी कंपनी चाहेंगे, आपको अपना दोस्त या एक अच्छा एक्विंटेंस बनाना चाहेंगे. Then we have the Knight of Cups. This Knight of Cups shows that you are living your best life. You're literally living your best life. The problems you dealt in the past, वो problems से अब आप deal नहीं कर रहे हो. Then we have the Page of Cups. Page of Cups here shows some love, romance is about to start in your life. Passionate time period, romantic time period, love is in the air for you. Pile number 3. Then we have the Eight of Cups. Eight of Cups shows कि आप अपना लिटरली घर छोड़ सकते हो, अपना घर बार छोड़ सकते हो. ऐसा नहीं है कि सन्यासी बन जाओ, जंगल में जाके रहने लग जाओ, नहीं. इट जस्ट शोज के यू आर लिविंग योर कंफर्ट जोन. एंड ऑल्सो जो रिलेशनशिप्स, जो फ्रेंडशिप्स आपको अब डाउन महसूस कराने लगी थी, या जो लोग आपके लिए टॉक्सिक हो गए थे, यू आर लीविंग देम एंड यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ. यू आर नॉट सो अटैच्ड विद देम, यू हैव लेफ्ट योर अटैचमेंट. क्योंकि आपने ये चीज़ रियलाइज करी कि अटैचमेंट मुझे दुख देगी, क्योंकि ये लोग मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं है. कई बार होता है, इट हैपेंस दैट वी नो दैट दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर अस, but it just seems, or it feels so cool to hang out with them. It seems like that. So especially pile number 3, if you have Jupiter Rahu conjunction, या फिर Rahu is 5 or 9 places away from Jupiter, Jupiter and Rahu are trine from each other, या Jupiter and Rahu are conjunct together, it shows कि 17 से लेकर 28 की एज तक there are high chances कि आप ऐसे लोगों से बातचीत करो, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो जो लोग आपकी रेपुटेशन को डाउन ही कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचा रहे हैं. एंड यू नो कि वो ठीक लोग नहीं है. They are shady people, they have some shady business, but you still hang out with them because it just feels so cool. And you know it कि वो ठीक लोग नहीं है. So like this kind of situation, especially अगर Jupiter राहु का strong ऐसे conjunction है within 10 degrees, या फिर राहु Jupiter are trine from each other, ये situations होंगी. Be careful if you are in the age group of 17 to 28. After 28, yes, इन लोगों से पीछा छूट जाएगा, पर हाँ 17 से लेकर 28 की एज तक one has to be really careful with this kind of placement. And जो भी आप acquaintances बनाओ, romantic relationships में आओ, या फ्रेंड्स बनाओ, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप्स करो, वो दे विल डू समथिंग बैड टू यू. दे विल काइंड ऑफ मेक योर रेपुटेशन बैड, या फिर आपका नाम खराब करना, वो सब होगा. उनकी वजह से आपको सफरिंग मिलेगी. सो अगर ऐसी प्लेसमेंट है, बी केयरफुल, बी एक्सट्रीमली केयरफुल. बट हाँ, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स ही शो कर, अगर आपके पास ये प्लेसमेंट है या नहीं है, इंफॉर्मेशन आपके लिए यही है पाइल 3 कि आप यहाँ गाइडेंस है कि आप ऐसे लोगों को छोड़ दो जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपका मोरल डाउन करते हैं, जो आपका उमंग उत्साह कम करते हैं. आपको ऐसे लोगों को छोड़ना ही चाहिए, छोड़ना ही पड़ेगा, और छोड़ते हुए नजर आ रहे हो. सो that's there. And many of you are literally leaving home because of career. That's there. And then we have the King of Swords. King of Swords shows again emotional intelligence, and it shows कि दूसरों की बातें आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं करती. अगेन मान अपमान निंदा स्तुति आपको बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रही है. अगर किसी ने तारीफ करी ओके, अगर किसी ने आपको क्रिटिसाइज करा तो भी ओके. तो कोई अच्छी चीज़ हो रही है तब भी न्यूट्रल, तब भी खुश नहीं, न्यूट्रल. और अगर किसी ने कोई बुरी चीज़ हुई तब भी न्यूट्रल. ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है पायल नंबर 3. एंड अगेन वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, राइट. भगवान को भी कितनी लोग गाली भी देंगे और कितने लोग महिमा भी करेंगे, अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे. और
अच्छी अच्छी बातें करना भगवान के बारे में और भगवान को ही गाली देना, ये एक सेम पर्सन भी कर सकता है। तो जब भगवान न्यूट्रल होके हर चीज को सहन कर लेते हैं, तो हम तो उनके बच्चे, हमें भी तो सहन करनी चाहिए ना। जब हमारे पिता को ही नहीं छोड़ रहे, हमारे पेरेंट को ही, भगवान को ही नहीं छोड़ रहे लोग, तो हमें क्या छोड़ेंगे। तो फिर अपने आप को यहाँ पर न्यूट्रल करने की बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। भगवान भी सिखाता है, निंदा स्तुति मान अपमान एक रहना। हमने ना झाड़ पे चढ़ जाना किसी ने तारीफ करी, और ना जमीन पे गिर पड़ना अगर किसी ने बुरी बात कही, हमें क्रिटिसाइज करा हमें। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड इज वेरी वेरी इम्यून टू निंदा स्तुति मान अपमान, to good and bad things. He is really immune, and it shows that you are also going to be immune. Pile 3, and I also feel pile 3 you were attracted to pile 2. ये owl वाला कार्ड है, you were also attracted to this card. So if you have time and energy, go watch pile 2 as well, क्योंकि इसके अंदर भी आपके लिए बहुत सारे messages होंगे। And time for, like, again, healing is coming towards you. Also some relationship is about to happen. ये भी यहाँ पर है, someone is going to be really attracted towards you. Someone wants to be in a relationship with you. They are really attracted towards you. And ये जो भी person होंगे, they will be very sarcastic in nature, बड़ा ही comedian type of person होंगे. They will make you laugh, but also remember, the person who can make you laugh, they can even make you cry. So again, have a neutral approach here. बट हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पर रिलेशनशिप फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। सम पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ, और कोई ट्रैवल है, और उस ट्रैवल के बाद आप इस पर्सन से मिलते हुए नजर आ रहे हो। व्हेन यू लीव द पीपल बिहाइंड, जो लोग अब आपको क्रिटिसाइज करते हैं या जेलस फैक्टर रखते हैं आपसे, आप उनको छोड़ रहे हो। एंड दे में से कि ऐसे तो आप अकेले पड़ जाओगे, वो लोग आपको ये कहे कि ऐसे तो आप अकेले पड़ जाओगे, तुम तो अकेले ही रह जाओगे, बट ऐसा नहीं है। लाइक समवन एल्स इज कमिंग इन योर लाइफ, समवन इज एग्जिटिंग एंड सम न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। एक न्यू जो है, एक साइकिल शुरू हुआ है आपकी लाइफ में, ऑलरेडी शुरू हो गया या फिर होने वाला है। सो दिस पर्सन में कम इन योर लाइफ 1 month from now. That can be seen, and 8 days from now या 8 weeks from now you can get this opportunity to travel away from your homeland. You may travel to either mountainous regions या फिर जहाँ पर कोई water body है वहाँ पर आप travel करो, ये यहाँ पर information आ रही है। Many of you may travel to Hollywood or Bollywood, meaning Mumbai or Los Angeles. That can even happen. और in general आपके career regarding यहाँ पर travel नजर आ रहा है। You are going to be surrounded with people. अब बहुत सारे लोगों के बीच में रहने वाले हो अभी कुछ ही समय में। एक 1 month from now ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों के बीच में हो, बहुत सारे लोगों की आप ओपिनियंस भी सुनो, पर आप अपनी ही करते हुए नजर आ रहे हो। आप दूसरे ही सुनते हो और एक कान से सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो। दैट इज समथिंग विच आई सी। And even with the Ace of Swords, I feel that you're performing something and you're in front of other people. And I also see कि you're climbing the ladder here. You're climbing that social ladder, or you're climbing that corporate ladder. Whatever it is, you are going high somewhere. आप सच में एक माउंटेनियस रीजन पर जा सकते हो, या फिर आप अपने करियर में हाइट्स पर जाओ। दैट्स समथिंग विच वी आर गेटिंग। और आप एक ऐसी पोजीशन पर हो जहां अगेन दूसरे लोग आपसे, आपके एक्विंटेंस, आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं। you're in that situation. तो that's there. Something else, something more. यहाँ पर कोई और मैसेज पाइल नंबर 3 के लिए। Okay, we have 2 cards here. We have dream time, we have creation, and we have 3 card है। We have volcano, volatility, and we have dragonfly, emergence. So I do feel कि you can have again Purva or Uttar Bhadrapada nakshatra in your chart. Basically you're coming out of
your comfort zone, you are coming out of your home, or you're moving away from your homeland, you're moving away from your comfort zone, and you're creating something. आपने अपना घर छोड़ा है, आपने अपना पीस ऑफ, आपने अपना एक अपना कंफर्ट जोन छोड़ा ताकि आप अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर सको, क्रिएट कर सको, एंड यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव इन द नियर फ्यूचर एज वेल. एंड ऑल्सो यू फाउंड अ बैलेंस इन लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस, या फिर कितना समय मुझे दूसरों के साथ बिताना चाहिए, कितना समय मुझे अपने साथ बिताना चाहिए, और सोशल बैटरी मेरी डाई डाउन ना करे. लाइक यू आर काइंड ऑफ बैलेंसिंग एवरीथिंग. एंड आई ऑल्सो फील के देयर आर अगेन पीपल हु आर देयर, दूसरे लोग, यू आर सराउंडेड विद पीपल एंड ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल. सो that's there. And dragonfly emergence, you are emerging or maybe re-emerging in the world. कोई ऐसी चीज़ है जिसमें पास्ट में आपने एफर्ट करा बट उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, आप उसी बारे में, उसी चीज़ के बारे में फिर से एक एफर्ट कर रहे हो, और ये वाला जो एफर्ट है ये सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है. एंड ऑल्सो विद द ड्रैगनफ्लाई री-इमर्जेंस आई सी कि पास्ट लाइफ के जो आपके संस्कार हैं या जो आपके अंदर क्वालिटीज है वो इमर्ज हो रही हैं फिर से. जो मर्ज पड़ी थी अंदर अभी, वो फिर से री इमर्ज कर रही है. जो पास्ट लाइफ की आपके पास स्किल सेट्स हैं वो फिर से री इमर्ज कर रहे हैं, अबव द सरफेस आ रहे हैं, सभी को दिख रहे हैं. आप देख रहे हो कि अरे ये भी क्वालिटी मेरे अंदर है, क्योंकि आपने अब अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला है. अभी से 8 weeks from now, 8 days from now, you're literally out of your home, literally out of your birthplace, literally out of your comfort zone. And then you realize, oh, मेरे अंदर ये भी skill set है, मेरे अंदर ये भी quality है. Then you realize those things. Then we have volcano, we have volatility. You are like, अब बहुत हो गया. Now things are done. I don't want to be with this, or I don't want to deal with these things in my life. I'm done with these things, or I'm done with these people, I'm done with this routine and whatever. Like now I want something new, now I want some new beginning in my life. तो ऐसी एक अंदर से भी चाहत उभर के आ रही है. आपको अपने बारे में कुछ ऐसी चीजें पता लगेगी. पाइल नंबर 3, अभी से 8 days from now या 8 weeks from now या फिर 3 weeks from now ऑल्सो, जो आपको पता ही नहीं था अपने बारे में. कुछ ऐसी चीज़ें आपको रियलाइज़ होगी कि अरे ये चीज़ मेरे में है, ये क्वालिटी मेरे में है, ये कमी मेरे में है, कमी कमजोरियां भी और अच्छी चीज़ें भी आपको रियलाइज़ होनी शुरू हो गई. अरे मैं भी ये गलती कर सकती हूँ. लाइक यू विल रियलाइज दीज थिंग्स. सो ये यहाँ पर नजर आ रहा है. अगेन अ न्यू साइकिल इज स्टार्टिंग. एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज देयर. एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी को शो करता है. एस ऑफ स्वॉर्ड शो करता है न्यू बिगिनिंग्स को. एस ऑफ स्वॉर्ड शो करता है किसी चीज की एंडिंग, न्यू बिगिनिंग, फेम कमिंग, अ न्यू साइकिल इन लाइफ कमिंग. इनफैक्ट ये स्वॉर्ड आपके हेल्थ इशू को कट डाउन कर रहा है. So all these things are happening. Like there are many things. There is just not one exact message. वैसे one exact message ये है कि एक नई साइकिल शुरू हो रही है लाइफ में. एक नया टाइम पीरियड, प्लानिटरी टाइम साइकिल, एक नई दशा आपकी लाइफ में शुरू हो सकती है. एक नया साइकिल शुरू हो रहा है. दैट्स द मेन थिंग. और उस साइकिल में ये सारी चीज़ें हो रही है. ऑल राइट, फाइल नंबर 3. सो दिस इज वॉट वी आर गेटिंग हेयर. And I will say the sign of Pisces, the sign of Aquarius, the sign of Virgo and Libra and Scorpio, Gemini, ये यहाँ पर prominent है. Gemini में we have the nakshatra of Mrigasira, Ardra and Punarvasu. Libra में, Virgo में we have the nakshatra of Uttar Falguni, Hasta, Chitra, and even Libra में we have the nakshatra of Chitra, Swati, Vishaka. फिर Vishaka spill करता है Scorpio में, Anuradha, Jyeshtha. Then we have the like the sign of Aquarius. Aquarius में we have the nakshatra of Dhanishta, Satabhishak
and the nakshatra of Purva Bhadrapada, और फिर पूर्व भद्रपदा स्पिल करता है Pisces में, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस, इन नक्षत्र में आपके मेन बर्थ हॉरोस्कोप में या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट या फिर इन द D12 चार्ट इसमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। ऑल राइट, पायल नंबर 3, इसके अंदर आपका सन मून राइजिंग आत्मा कारक का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस्ड होगा। So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know in the comment section below what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. And also, like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get this bracelet set over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.